Okay. So here we are doing income from house property, very simple head of income, no amendments in AY 1920. So it's a very easy and a simple head. Now, of course, let's have a quick look at it. First, there are certain conditions that have to be satisfied. Certain conditions that have to be satisfied. Only then the income will be taxable under the head income from HP. What are these conditions? Can you just tell me? Yes, first there should be a house property. Assessee should be the owner of the house property. Owner can be legal owner or deemed owner. Okay, owner can be legal owner or deemed owner. So there are these certain conditions. One, there should be a HP. Assessee should be the owner. Now, you realize ki there should be HP. It has a bigger, wide meaning to it. Why? Because sometimes if the house is under construction, income from HP can't start till the house property gets constructed. And that is why we say there should be a HP in existence. So there is an HP. Then second is what? Assessee should be the owner of the house property. Assessee should not use that property for his own business or profession. Now, if I use it for my own business or profession, there's a separate head of income which is profits and gains of business and profession. Then you automatically get covered. अगर आप आपके जो ऑफिस है वहां से बिजनेस कर रहे हो तो उससे बिजनेस इनकम हो ही रहा है, तो देयर इज अ सेपरेट हेड टू टेक केयर ऑफ इट. यू डोंट नीड टू गेट इनटू HP. Okay, so if you are using it for your own business purpose, then please don't come under HP. Go to the other head, which is profits and gains of business and profession. And fourth is a important situation wherein there's a builder who's constructed these house properties and it is as a stock in trade करके वो use करता है. मतलब stock in trade मतलब उसका business करता है. If I say I have computers are my stock in trade, what does it mean? It means that I am into the trading business of computers. I buy computers and I sell computers. So if I have a stock in trade of certain offices or flats or immovable property, I am a builder who is selling these as my stock in trade. I am doing trading in this. Now builder के लिए क्या होता है, 1 साल तक उसको टाइम दिया है. ना 1 साल तक मतलब कहाँ से, जिस ईयर में आप, आई एम श्योर मैंने इसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल देके एवाई एक आपके नोट्स में लिखवाया है, आपको एक डेट दिया है कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, उस ईयर से आगे 1 साल तक नहीं है. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कैरी आवर रेगुलर नोट्स. उसको रामबाण बुक करना है बिल्कुल, कि ये बस इतना पूरा पढ़ के जाओ तो आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. सी अगर सुनो, मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुझे आज मिला. ओके, आई गॉट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन जनवरी 19 से. आई गॉट कंप्लीशन इन Jan 19. सो 1 year फ्रॉम दिस ईयर, सो 31st March 2019 के आगे 1 साल तक आई विल बी अलाउड टू टेक द GAV ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी एज नील. बियॉन्ड दैट इज GAV विल बी कैलकुलेटेड ऑन डीम्ड लेट आउट बेसिस. ओके, ऑन डीम्ड लेट आउट. स्टेप 1, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. सो बिल्डर्स आर अलाउड टू, जो उनके वेकेंट पड़े हैं, ऐसे ही फ्लैट्स पड़े जो उन्होंने सेल नहीं कर पाए, स्टॉक इन ट्रेड है उनका, 1 साल तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के, इन द ईयर इन विच यू गेट योर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बियॉन्ड दैट टिल 1 year इट विल बी ट्रीटेड एज नील. बियॉन्ड दैट इज GAV विल बी कैलकुलेटेड एंड डीम्ड इनकम देना पड़ेगा. तो HP में एक कंसेप्ट क्लियर है. यू कुड गेट अ मल्टीपल चॉइस इन दिस HP में, और ये भी मैंने आई थिंक आपको कहीं डिक्टेट किया है कि HP में डू वी कंसिडर ऑलवेज रियल इनकम? नो, देर आर सिचुएशन समटाइम्स वेर वी कंसिडर नोशनल इनकम. यस, सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ, ये भी मैंने लिखवा के दिया है आपको. हाँ, आई रिमेम्बर. तो ये लिखवा के दिया हुआ है आपको कि HP में भी हमें कभी कभी नोशनल इनकम आता है. उसका ये एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने रेंट पे दिया ही नहीं फिर भी मुझे इनकम आ रहा है, तो नोशनल. या समटाइम्स इट्स अ LO प्रॉपर्टी, फिर भी स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर. सो आई पे टैक्स ऑन स्टेप 1 which is not my actual rent but expected rent. So do in some cases I pay income on notional basis? Yes, I do that in HP. HP के ये 4 conditions. एक चीज याद रखनी है, though I use the word house property, it does not mean it's a residential property. Building, office, godown, any structure is a house property. It could be residential, it could be commercial. तो ऑफिस रेंट पे दिया तो भी इनकम फ्रॉम HP, घर रेंट पे दिया तो भी इनकम फ्रॉम HP. बराबर है? आपको क्या पता होना चाहिए, HP में ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई सब लेट अ प्रॉपर्टी, द इनकम दैट आई गेट इज नॉट इनकम फ्रॉम HP, इट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और PGPP या IOS में ले सकते हो. अगर मैंने वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड रेंट पे दिया है फॉर पार्किंग पर्पजेज, एग्जीबिशन है, वहां पे स्टॉल लग रहा है, तो वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड अगर आपने रेंट पे दिया है, दिस रेंटल इनकम इज ऑल्सो टैक्स्ड अंडर
IOS और PGBP. Okay, but it doesn't come under HP because यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, HP हाउस प्रॉपर्टी नहीं है एग्जिस्टेंस में. तो ये दो एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि HP के लिए ये होना जरूरी है. सो आई थिंक इन द नोट्स अगेन इट इज गिवन वेरी क्लियरली. HP means a building. House rent from letting out a vacant plot cannot be taxed under HP. Rental income from subletting is not taxed under HP. And there's a very important case law reference. जो मॉड्यूल नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल पे केस लॉज नहीं देता है, दो ही केस लॉज के रेफरेंस दिए, एक एचपी में और एक कैपिटल गेन्स में, तो दोनों मैंने आपके साथ कवर किए हुए हैं. सो देर इज दिस केस लॉ सेइंग दैट इफ असेसी इज यूजिंग द हाउस प्रॉपर्टी, इट इज हिज बिजनेस ऑफ गिविंग इट ऑन रेंट. मतलब यू कैन मेक आउट फ्रॉम असेसी क्या करता है, सिर्फ घर खरीदता है और उसका बिजनेस ही है रेंट पे देना और रेंटल इनकम, नथिंग एल्स ही डज. ही सेज दिस इज द बेस्ट थिंग, सो लेट मी जस्ट डू दैट. सो इफ ही इज इनटू बिजनेस ऑफ गिविंग इट ऑन रेंट, देयर इज अ Supreme Court judgment which says that, okay, there is a judgment which says that this rental income should be taxed as business income. Yes, so it should be taxed as business income. A Supreme Court ruling is there. Do you understand that? ये मॉड्यूल में कवर है, इसीलिए हमने भी इसको कवर किया है, right? You cannot go beyond ICI study material. We have to know it thoroughly. बराबर? आगे, house property can be commercial and all this I told you, yes. Now different types of house properties. ओके अगर आप घर में रहते हो देन दैट बिकम्स अ एसओ प्रॉपर्टी. अगर आप रेंट पे देते हो इट बिकम्स अ एलओ प्रॉपर्टी. अगर आप उसको ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो इट विल गो अंडर पीजीबीपी, एचपी में नहीं आएगा. अच्छा अगर मैंने, तो ये बहुत अच्छा होता है, आपको एक चीज पता है एचपी में व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. मतलब घर की वैल्यू ही घर का इनकम है, वैल्यू. दैट इज व्हाई वी डोंट से घर का रेंटल इनकम ही घर का इनकम है. नहीं, क्या वर्ड हम बोलते हैं, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. घर की वैल्यू को हम इनकम ट्रीट करते हैं. जीएवी इज ट्रीटेड एज द इनकम. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, इनकम टैक्स हैज गिवन यू वन बेनिफिट दैट एसओ प्रॉपर्टी का जीएवी विल बी टेकन एज नील. ओके, इट विल बी टेकन एज नील. तो लोग क्या करेंगे, तुरंत सारे हाउस प्रॉपर्टीज को एसओ दिखा देंगे और कोई भी एलओ नहीं दिखाएंगे. हाँ, लेकिन इज देयर अ रूल? यस, इनकम टैक्स सेज यू आर अलाउड टू ट्रीट वन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ योर चॉइस. कैन असेसी चेंज दिस चॉइस एवरी ईयर ऑन ईयर? यस. सो वन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ योर चॉइस शैल बी ट्रीटेड एज एसओ प्रॉपर्टी. अदर प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट और उस पर आपको जीएवी निकाल के टैक्स देना पड़ेगा. आप बोलोगे दिस इज अनफेयर. इनकम टैक्स इज नो, इट्स नॉट अनफेयर. You can afford to buy 4 houses, you can afford to buy 3 houses and live in all 3. अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करेगा, नहीं आई विल स्टे ओनली इन वन हाउस, बाकी के रेंट पे दे देते. तुम्हारे पास इतना है, तुम बोलते हो नहीं आई एम नॉट इन नीड ऑफ मनी. कहीं एक घर में 6 महीने रहना, कहीं 4 महीने दूसरे घर में रहना. यू वांट टू डू दैट, प्लीज पे टैक्सेस ऑन दैट. ट्रीट दैट अदर हाउस एज डीम्ड टू बी लेट आउट. तो इट्स क्वाइट लॉजिकल एंड इट्स क्वाइट क्लियर, राइट? तो डीम टू बी लेट आउट. तो ऐसे 3 टाइप की प्रॉपर्टीज है. तीनों प्रॉपर्टीज के लिए जीएवी निकालने और इसके रूल्स अलग होते हैं. एसओ के लिए जीएवी क्या होता है, नील होता है. तो मैंने ये एक ही साथ कंबाइंड एक टेबल दे दिया है, नोट्स में अलग अलग दिया एसओ के लिए, एलओ के लिए, डीएलओ. बट नाउ यू ऑलरेडी नो इट, सो इट्स इजी फॉर अस इन द रिविजन बैच टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. ओके, सो जीएवी, पहले लुक एट द एसओ का कॉलम. एसओ का जीएवी क्या होता है, नील. म्युनिसिपल टैक्सेस नील, हम पे करते फिर भी वो खर्चा करके अलाउ नहीं होता. यू एंड मी कैन नॉट डिसाइड व्हाट आर एक्सपेंसेस इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स एक्ट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड क्या खर्चे अलाउ होंगे और कौन से खर्चे अलाउ नहीं होंगे. तो एसओ के लिए म्युनिसिपल टैक्सेस इज नील. नेट एनुअल वैल्यू automatically for SO is nil. Now you could get a multiple choice. Is NAV of a SO property always zero? Always zero. Yes. Can it be negative? Never. क्योंकि GAV is zero, municipal tax is zero, NAV will always be zero. समझ में आ रहा है आपको? हाँ. नाउ डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 का है, 24A है एक्चुअली. स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्चुअली स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है बताना जरा. 30% ऑफ एनएवी. क्योंकि एनएवी जीरो है, इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हियर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एज इट इज नहीं है, एक एस्ट्रिक मार्क होना चाहिए वहां पे. दिस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स. Subject to certain limits. Now what is the limit over there? I'm still on the SO property first. Now see, first so you should understand this. Loan can be taken for what purpose? I always tell you matching principle. What do I tell you students? Matching principle. देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लोन बिजनेस के लिए लेना चाहिए.
तो वो बिजनेस में आएगा। अगर आप एचपी का चैप्टर पढ़ रहे हो, इनकम एचपी से आ रहा है, तो लोन भी किसके लिए होना चाहिए? एचपी से रिलेटेड, आइदर एचपी खरीदने के लिए, एचपी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। एंटायर एचपी चैप्टर, दिस इज कॉमन, यू आर अलाउड टू टेक लोन्स ओनली फॉर दीज 5 पर्पसेस। अगर आपने किसी ने डॉटर की शादी के लिए लोन लिया, वर्ल्ड ट्रैवल के लिए लोन लिया, क्या ये इंटरेस्ट अलाउ होगा? नहीं। अच्छा, बिजनेस के लिए लिया, मैचिंग प्रिंसिपल, बिजनेस से रिलेटेड इनकम कौन से हेड में जाता है? पीजीबीपी, तो उससे रिलेटेड खर्चा किधर जाना चाहिए? पीजीबीपी में। There's a logic to it, okay? So understand, purchase, construction, reconstruction, renovation, repairs, ये 5 पर्पस के लिए आप लोन ले सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट जितना है उतना अलाउ होगा क्या? नहीं। देर इज ए लिमिट फॉर एसओ। हाउ मच इज द लिमिट फॉर एसओ? एसओ के लिए लिमिट होता है आइदर 2 लाख या 30,000। व्हाट इज द लिमिट? Yes, when is the limit? 2 lakhs? First, always look for the limit of 2 lakhs. If not 2 lakhs, then the limit would be 30,000. We are talking about SO property का interest. कब होता है लिमिट 2 लाख? when the loan is for purchase or construction and loan is taken on or after 1st April 1999. Now why all of a sudden 99? That was the year in which the limit got increased from 30,000 to 2 lakhs. Income tax act keeps changing every year. So here it is 2 lakhs if certain conditions are satisfied. Loan is taken on or after 1st April 99. Loan is for purchase or for construction, and if it is for construction, the construction should be completed within 5 years. Construction should be completed within 5 years from the end of the PY in which the loan is taken. If you satisfy these 3 conditions, only then the interest allowable would be 2 lakhs. Otherwise, the interest would be restricted to 30,000. Can I come to a conclusion here? This is for purchase or construction. Can I come to a conclusion that if I take a loan for repairs anytime, the limit will always be 30,000. Can I come to that conclusion? Yes. Repairs, renovation, reconstruction के लिए limit will always be 30,000. Is that clear to everybody? Yes. So it will always be 30,000. In case of repairs वगैरह, यहाँ पे repairs, reconstruction, renovation के लिए limit would be how much? 30,000. Limit will be 30,000. Is that clear to everybody? Sure. 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, लोन इज आफ्टर 1st April 1999, and if it is for construction, the construction is completed within 5 years. This is the interest for SO property. बराबर? अच्छा, क्या these limits of 2 lakhs, 30,000 और कहीं एप्लीकेबल है क्या? क्या ये एलओ प्रॉपर्टी के लिए है? डीएलओ के लिए है? नहीं। तो वहां क्या होता है? जितना इंटरेस्ट है उतना अलाउ होता है, बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे होता है। अच्छा, क्योंकि हम एचपी की बात कर रहे हैं, पहले बताना असेसी का जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, क्या हम वो कंसिडर करते हैं? असेसी आता है और बोलता है मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, आई एम फॉलोइंग ड्यू बेसिस, तो मुझे ना 4 महीने का रेंट मिला ही नहीं, तो सिर्फ 8 महीने का ही रेंट टैक्स कर दो। ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। एचपी में वी इग्नोर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी। आउट ऑफ द 5 हेड्स देयर आर ओनली 2 हेड्स, PGBP and IOS, which follow the method of accounting followed by the assessee. तो HP में बिल्कुल it is you never look at the method of accounting followed by the assessee. Interest is allowed on accrual basis. Okay, interest on borrowed capital is allowed on accrual basis. Interest on borrowed capital has a limit only in case of SO property, no limit in case of LO, no limit in case of DLO. Right. So coming back to your theory question here, please understand I am on this 30 और 40 का, मैं 30,000 और 2 lakhs का इंटरेस्ट का लिमिट बता दिया आपको। अभी यहाँ पे देखेंगे ये दो, LO और DLO, बराबर। LO है सेकेंड कॉलम, लुक एट इट। LO के लिए क्या होता है? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऑल स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। These 3 steps are involved. How to do it? I am going to take a problem on that. Less municipal taxes. Municipal taxes are allowed on payment basis. इधर ही आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन पेमेंट बेसिस। ओ, तो हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग असेसी का देखते ही नहीं है, हमने फिक्स कर दिया ये।
बराबर है क्या? सो म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन पेमेंट बेसिस, हु शुड पे दिस म्युनिसिपल टैक्सेस? ओनर. इफ टेनेंट पेज इट, देन डू वी अलाउ इट? नो. इट इज गिवन समटाइम्स टू यू इन द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कि टेनेंट ने पे किया तभी भी हम इसको अलाउ नहीं करेंगे. समझ में आता है? ओनर शुड पे इट पेमेंट बेसिस. आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा पिछले 3 साल का म्युनिसिपल टैक्सेस एक साथ पे कर दिया तो तीनों साल का जितना पे किया उतना अलाउ हो जाएगा. इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. आपको ऐसे क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? हाउस प्रॉपर्टी इज फॉर ओन फॉर 9 मंथ्स. हाँ, हाउस प्रॉपर्टी 9 मंथ्स के लिए है, फिर भी म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे साल का पे किया. आपने हाउस प्रॉपर्टी मिडिल ऑफ द ईयर खरीदा, फिर भी जितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया उतना पूरा अलाउ होता है. लॉजिक इज म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. समझ में आ रहा है? आगे डीम टू बी लेट आउट. अच्छा नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा. कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा? 30% ऑफ एनएवी. एंड देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एट एक्चुअल नो लिमिट. कोई लिमिट होता है क्या? नो लिमिट इज देयर. इनकम फ्रॉम एचपी जो भी आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. करेक्ट. कैन एलओ प्रॉपर्टी का एनएवी बी नेगेटिव? एनएवी एलओ का कैन इट बी नेगेटिव? Yes, it can be. If municipal taxes paid are more, it can be negative. Deemed to be let out. Deemed to be let out का GAV कैसे कैलकुलेट होता है? Using step 1. नहीं, only one step. Using only step 1. Then municipal taxes at actual. एनईवी आएगा. एनईवी आएगा उसका 30% निकालेंगे. और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउ होगा? हाँ, एट एक्रूअल बेसिस अलाउ होगा. कोई लिमिट नहीं, जितना इंटरेस्ट है उतना अलाउ होगा. 2 लाख का और 30,000 का लिमिट इज देयर ओनली फॉर एसओ प्रॉपर्टी. एलओडीएल अगेन वी डन इट. ओके. जीएवी का कैलकुलेशन मैं बता दूं आपको. अच्छा, अगर आपको पता है अलग अलग जीएवी के कैलकुलेशंस होते हैं, आपने जो सीखा होगा, हर एक का जीएवी सिखाने का तरीका अलग होता है. मॉड्यूल में स्लाइटली इट्स डिफरेंट, अदर बुक्स आर हैविंग डिफरेंट, बट माय मेथड इज सिमिलर टू द मॉड्यूल एंड द आंसर ऑलवेज इज सेम लाइक द मॉड्यूल. सो वट एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल, जस्ट स्टिक टू दैट वन मेथड. डू नॉट चेंज योर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द जीएवी. नाउ हियर तुरंत हम पहले देख लेते हैं जीएवी का क्या होता है. जो स्टेप 1 है इसको बोलते हैं, मॉड्यूल में टर्म यूज किया है ईआर. क्या टर्म यूज किया है मॉड्यूल में? ईआर. ईआर इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट. व्हाट इज ईआर कॉल्ड एज? एक्सपेक्टेड रेंट. मतलब इतना रेंट इस प्रॉपर्टी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट. इतना रेंट हम इस प्रॉपर्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द रेंट आई कैन एक्सपेक्ट? ईआर में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट whichever is higher subject to standard rent. Subject to standard rent. What is municipal value? It is a value on which हमेशा municipal tax is calculated. ये एक ऐसा value है जो local authorities find out करते हैं. क्यों देते हैं ये? On this value we calculate the municipal taxes, local taxes. Fair rent. Sometimes in the exam you will not get the term fair rent. You will get rent of a similar property, rent of a similar flat in the neighboring building. This should be treated as fair rent. What is fair rent? Rent of a similar kind of property. तो कंसेप्ट पता है आपको, रेंट ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. तो एग्जाम में भले ही ये टर्म दिया तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. दे कैन कॉल इट इंस्टेड ऑफ फेयर रेंट, दे कैन से रेंट ऑफ अ सिमिलर और नेबर्स रेंट फ्लैट विच इज सिमिलर is getting so much rent. So you should understand it is getting a rent of 10,000 per month. It is an indication that 10,000 per month is the FR, the fair rent. समझ में आ रहा है सबको? आगे, स्टैंडर्ड रेंट इज अ रेंट गिवन अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट. समटाइम्स दिस इज एप्लीकेबल, समटाइम्स दिस इज नॉट एप्लीकेबल. इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल, नो प्रॉब्लम, देन म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट whichever is higher. Okay, then there is step 2. What is step 2? Here is important. Step 2 is actual. Step 2 actual basis पे होता है. Step 1 expected होता है. Step 2 actual. So step 2 says annual rent received or receivable. आपको मिल चुका है या मिलने वाला है, रिसीवेबल. तो वट एवर इज द एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अनरियलाइज रेंट एंड लेस लॉस ड्यू टू वेकेंसी. अच्छा,
लॉस ड्यू टू वेकेंसी, therefore step 2 आएगा. Students, step 2 I can't calculate for DLO. हाँ, I can't calculate for DLO. एक्चुअली वो रेंट पे दिया ही नहीं है, इसलिए डीएलओ को क्या निकलता है, सिर्फ स्टेप 1. नाउ टेल मी वन थिंग क्विकली, स्टेप 2 में आपको याद आ रहा है क्या कि ये अनरियलाइज रेंट, ये जो पार्ट है अनरियलाइज रेंट, ये कब हम माइनस कर सकते हैं? इसके कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है. क्या कंडीशंस है? हमने टेनेंट हैज वेकेटेड योर प्रॉपर्टी, करेक्ट. हमने दूसरी किसी प्रॉपर्टी उसको रेंट पे नहीं दी है, बराबर. पता है, ये मैंने आपको सिखाया है, मैं क्यों वापस इसको रिवाइज करा रही हूँ. इस कंसेप्ट पे नवंबर 18 में क्वेश्चन था, क्या दिया है पता है? टेनेंट हैज नॉट वेकेटेड द प्रॉपर्टी और नॉट वेकेटेड एनी अदर प्रॉपर्टी. 2 महीने का रेंट अनरियलाइज है, लेकिन टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली नहीं किया, तो वो अनरियलाइज रेंट लेस नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलती हूँ, इंस्टीट्यूट है, सीए एग्जाम है, वो एज इट इज क्वेश्चंस पिकअप करके नहीं देने वाले. दे विल कम अप विद एनी टर्न्स एंड ट्विस्ट वी डू नॉट नो. वी कांट प्रेडिक्ट देयर क्वेश्चंस. व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू? अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट एंड गो. सो ये सिखाया हुआ कंसेप्ट है आपको, बराबर है कि अनरियलाइज रेंट लेस करने के 4 कंडीशंस होते हैं. 1, tenancy is bona fide. 2, the tenant is not in occupation of the property. He is not in occupation of any other property. इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है. आपने उसको घर रेंट पे दिया और एक ऑफिस घर पे रेंट पे दिया, वो घर का रेंट नहीं दे रहा है, तुम बोलते हो हाँ हाँ कोई बात नहीं है, तुम्हें ना घर ऑफिस कंटिन्यू करो, रेंट पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले आप क्या करोगे, अरे ये पैसे नहीं दे पा रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, उसको पहले बोलो घर और ऑफिस खाली कर दे. And last, you've taken legal action, or you are able to convince the AO that taking of legal action is of no use. इसका भी एग्जाम्पल दिया कि रेंट आपका 10 या 20,000 है, एडवोकेट की फी 40,000 है और उसके बाद लीगल का खर्चा इतना है, तो तुम AO को बोलते हो लुक इतना, ये 10,000 का ही अनरियलाइज रेंट है, उसके लिए कहाँ हम 50,000 का खर्चा करें. ठीक है. सो दीज आर कंडीशंस गिवन इन रूल 4. सो रूल 4 की ये 4 कंडीशंस है, ये सेटिस्फाई करने पे ही स्टेप 2 में से अनरियलाइज रेंट लेस होता है. फिर आता है लॉस ड्यू टू वेकेंसी. वेकेंसी का मतलब क्या होता है? वेकेंसी इज अ पीरियड व्हेन यू वांट टू गिव द हाउस ऑन रेंट बट यू आर नॉट फाइंडिंग अ टेनेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकेंसी? आई वांट टू गिव द हाउस ऑन रेंट बट आई एम नॉट गेटिंग अ टेनेंट, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज वेकेंसी. बाय चांस इफ आई सेल्फ ऑक्यूपाई द हाउस, विल यू कॉल दैट पीरियड एज वेकेंसी? नो. तुम रहने लग गए मतलब वो वेकेंसी नहीं है. ऐसा हो सकता है 9 महीने आपने टेनेंट को दिया, 3 महीने आपने घर यूज किया, जब आप रहने लग गए तो वो 3 महीने वेकेंसी ट्रीट नहीं करना है. व्हेन यू सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस इट इज नॉट वेकेंसी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके. स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 इज एप्लीकेबल ओनली इफ देर इज स्टेप 2, हाँ, इज लेस. पता है स्टेप 2 जब लेस होता है ना, गवर्नमेंट से नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. क्यों? स्टेप 1 इज एक्सपेक्टेड रेंट एंड स्टेप 2 इज एक्चुअल. गवर्नमेंट बोलते हैं अरे एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख है, तुम्हारा एक्चुअल 80,000 है. नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हमको रीजंस बताओ क्यों ऐसा हो रहा है. सो आई मूव ऑन टू स्टेप 3 ओनली व्हेन स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 एंड देयर इज लॉस ड्यू टू वेकेंसी. ओ अच्छा, स्टेप 2 इज नॉट लेस, लॉस ड्यू टू वेकेंसी है ही नहीं, तो क्या? डोंट गो टू स्टेप 3. डोंट गो टू स्टेप 3. देन व्हाट इज द फाइनल जीएवी? व्हाटएवर इज अवेलेबल. गवर्नमेंट क्या बोलेगी? स्टेप 1 अवेलेबल है, स्टेप 2 है, दोनों में से क्या करने का? विचएवर इज हायर. गवर्नमेंट विल से व्हाट इज द जीएवी फॉर अस, स्टेप 1 और स्टेप 2, विचएवर इज हायर. समझ में आ रहा है क्या? पक्का? हाँ. इफ स्टेप 3 इज एप्लीकेबल, फाइंड आउट द रीजंस. मैं क्या करूंगी, ये जीएवी वाला लेके तुरंत, मैंने एक जीएवी का एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये करते ही हम तुरंत एक पहले जीएवी का क्वेश्चन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे स्टेप 2 इज लेस एंड देयर इज लॉस ड्यू टू वेकेंसी. बराबर है क्या? उसके बाद स्टेप 3 में रीजंस निकालने. रीजंस कैन बी 2. Okay, reasons can be 2. Either there is reason is only due to vacancy or V plus other reasons. How to find out this? I'll teach you with the help of the problem. सिर्फ vacancy होगा तो final GAV is step 2. And if it is V plus others, then it is step 1 minus loss due to vacancy.
समझ में आ रहा है क्या? निकालेंगे क्वेश्चन, एक जीएवी पे कर लेंगे। देखो एक कॉलमनर क्वेश्चन रहेगा, नंबर क्या है, आज मैंने जो प्रिंट आउट दिए आपको उसमें है। Again, understand some questions are from your notes itself, existing notes.